Okay, so now we are to continue our topic. That is, we were on the topic of the flower, right? The inflorescence we have covered yesterday, and now we are on the next topic. That is the flower. The flower. Inflorescence is the flower arrangement on the stem, and we studied two types of the arrangements. Now coming to the flower structure. What is this kind of the flower structure? What is this structure? This is basically when we talk about the things like जब भी हम कहते हैं कि फ्लावर के जो वर्ल्स हैं उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। वो फ्लावर्स में हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस नजर आती हैं उसके हर करेक्टर को लेके, उसके वर्ल्स को लेके बहुत सारे करेक्टर्स हैं। तो वो सारे करेक्टर्स की टर्मिनोलॉजी वी आर टू अंडरस्टैंड हियर फ्रॉम दिस टॉपिक। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द फ्लावर एंड द फोर वर्ल्स इफ प्रेजेंट। फोर वर्ल्स कौन से हैं इसके? दैट इज फर्स्ट इज innermost gynoecium, you know, that is the female reproductive part. Second is androecium, gynoecium is there, that is the female reproductive part. Then there is androecium, that is the male reproductive part. Then third, after that coming out from the center, then there are petals, the colored parts, that which attracts the pollinators. And lastly there are sepals, that which are green in color, leafy like structures present near the थैलेमस। ओके, दैट इज द रिसेप्टिकल जिसके ऊपर ये सारे पार्ट्स अरेंज होते हैं। फ्लावर का स्ट्रक्चर आप लोग को पता है, आपने 10th में ही अभी पढ़ा। अब अगर ये चारों के चारों वर्ल्स प्रेजेंट होते हैं, देन वी कॉल दैट काइंड ऑफ द फ्लावर एज अ कंप्लीट फ्लावर। नाउ यू आर नॉट टू से that it carries all the four worlds, that is gynoecium, androecium and ठीक है। अब आप एक वर्ड में इसको लिखेंगे, that is it is a complete flower, because here we are studying these terms, that is because आप लोगों ने अब फैमिलीज पढ़नी है आगे इसी चैप्टर के एंड में। अभी तो नहीं होंगी हमारी, आफ्टर योर वेकेशंस विल कंटिन्यू and even in your practicals we are to study those. So when you are to study those families, you need to know the characters. And in the starting also we studied about taxonomy, that there is a description of characters. Description doesn't mean they are providing the full sentence answers to you. They are providing this type of the small little terms, and the terms itself are explanatory. If you know the meaning of this term, then you can understand that what they want to say. ठीक है। सो टेक्सोनॉमी इस तरह से हमें हेल्प करेगी। जैसे मैंने उस दिन आपको लिख के दिया था कीज में, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको लिख के दिया था दैट द सेपल्स आर फ्यूज्ड। ठीक है, अब इतनी सारी वो नहीं लिखेंगे वो टर्म, सेपल्स की हेडिंग डाल के वो लिखेंगे गेमोसेप्लस, पॉलीसेप्लस, सीधा। अगर वो फ्यूज्ड है तो गेमोसेप्लस, अगर वो फ्री है तो पॉलीसेप्लस, ऐसा। ठीक है, तो टर्म्स लिखी जाएंगी, दे आर नॉट टू राइट द सेंटेंसेस, वो तो हमने आपको एक्सप्लेन किया था। पर फिलहाल ये टर्म्स आपको याद करनी है, ठीक है। If all the worlds are present, that is a complete flower. If any of these is missing, any of these, then it is an incomplete flower. Okay, the complete flower carries both male and female together. So we can also call the flowers as bisexual flowers. हम इनको bisexual भी कह सकते हैं, ठीक है। Bisexual flowers means that on one thallus both the male and female reproductive organs are present, है ना। So when there is only one thallus represents mono condition, okay, mono, and the two reproductive organs consider the bi condition. So we can call bisexual flowers as monoecious, okay। ये terms आपसे पूछी जाती हैं, and several times the students they are confused because of this term, because this is mono. मोनो का मतलब वो लेके चलते हैं दैट दिस इज अ सिंगल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसके अंदर होगा। नो, दिस रिप्रेजेंट्स अ सिंगल थैलस, एक सिंगल थैलस लेकिन दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हो, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हो, बाई सेक्सुअल। एक थैलस पे दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हो तो मोनोशियस, ठीक है। सिमिलरली ऑल्टरनेटिव टर्म्स हम साथ साथ में लिखते हैं। बाइसेक्सुअल के ऑल्टरनेटिव टर्म हमारे पास आती है यूनिसेक्सुअल flowers, as if they are incomplete, and incomplete because one of these is missing. Incomplete because if one of the reproductive organs are missing, then we call it as a unisexual flower. Okay, the unisexual flower is also termed as dioecious. Dioecious. Uni means a single reproductive organ. Sexual से याद रखना, single reproductive organ. Di here means two thalli. That is, both of them are having the two different thalli.
दो डिफरेंट फ्लावर्स हैं दोनों के पास, गाइनोशियम का फ्लावर अलग और एंड्रोशियम का फ्लावर अलग, ठीक है। तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो जो हमारे पास मेल फ्लावर होता है, मेल फ्लावर, अब ये भी आप टर्म ऐसे मैंने लिख दी है, पर इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, मेल फ्लावर के लिए वी कैन सिंपली यूज द सिंबल, जैसे सर्कल के ऊपर टेढ़ा एरो, ऐसा, ठीक है। सो मेल फ्लावर that is the male flower here is called as staminate. Male flower is termed as staminate and the female flower, it is a circle and a plus sign, female. Okay, this symbol represents female. A female flower of this which is born differently on the tooth that will be called as pistillate. The flower will be called as pistillate. Okay, if it is unisexual and or dioecious. Okay, coming to the next, the incomplete flower can also be because of the absence of these two whorls. मतलब ये दोनों whorls present होने तो जरूरी हैं, लेकिन कई बार कुछ flowers में ऐसा होता है जिनमें ये दोनों flowers दोनों parts जो हैं वो एक दूसरे से differentiate नहीं हो सकते, मतलब we can't differentiate the petals from the sepals, they both bear the same size, they both bear the same color. That is in onion. Onion का example आप देखेंगे तो वहां पे petals और sepals जो हैं they are both bearing the same color. Okay, that is white, and they are both bearing the same size also, that is small in size, ठीक है। So जब हमारे पास differentiation नहीं होता है petals and sepals में, तब हम एक term use करते हैं that is tepals. Tepals. Okay, when there is no differentiation in petals and sepals, we use a term tepals. And the whorl of that tepals is called as perianth. याद है आपको, whorl of petals is called as corolla, whorl of sepals called as calyx, ठीक है। So this is gynoecium whose single unit is called as a pistil, and the androecium whose single unit is called as a stamen. So single unit is tepal when there is no differentiation between these two, and perianth is its whorl, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो हमारे पास कंडीशंस आई यहाँ पे, दैट इज बिकॉज ऑफ द वेरिएशंस, मैंने अभी बोला ना बहुत सारी नंबर ऑफ वेरिएशंस है, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू दिस, मेल एंड फीमेल आर रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, बट इफ वी नीड टू गिव अ सिंबल टू बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को सिंबल कैसे दिया जाता है, एक सर्कल उसी में प्लस उसी में एरो, समझ गए, दिस इज बाइसेक्सुअल, अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, now coming to the next is the symmetry. Based upon the symmetry, this can show the radial symmetry, but the radial symmetry in plants, that is in flowers, it is called as actinomorphic. Okay, radial का मतलब क्या है, जब आप कोई फ्लावर देखते हो, फ्लावर है उसमें पेटल्स अरेंज्ड है, सेपल्स हैं उसमें, गाइनोशियम एंड्रोशियम सब कुछ है, अब आप इसको कट करते हो, they give the mirror images with this single plane, they will give you the mirror image with this plane, they are going to give you the mirror image with the oblique plane on the left, on the right, हर तरफ से ये आपको mirror image देगा, ठीक है। So this is called as actinomorphic, and symbolically we symbolize it as this circle के अंदर plus, ठीक है। ये symbols हैं जो आपको बाद में floral formula लिखने के काम आएंगे, ठीक है। वहां पे हमने टर्म भी नहीं लिखना, हमने सिर्फ सिंबल्स के साथ ही बता देना कि ये डिस्क्रिप्शन है इसकी, इतना शॉर्ट कर देते हैं डिस्क्रिप्शन को कि हमें टर्म भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैंने कहा कि सेंटेंस नहीं लिखना, अभी तो आप ये टर्म्स यूज कर रहे हो, अब टर्म्स के लिए भी आप सिंबल्स यूज करोगे बाद में, जहां पे बिल्कुल ही शॉर्ट हो जाएगा, इन वन लाइन, जस्ट इन दिस मच सेंटेंस, आप इतने से छोटी सी लाइन में आप लिखोगे उसके तकरीबन उसके 10 से 12 फीचर्स, जस्ट इन दिस मच लाइन। हाउ, this is half of the line of your notebooks. How? That is by providing these symbols. Okay, so ये साथ में याद करने हैं। After actinomorphic, there is, contrary to this, a term that is called as zygomorphic. Zygomorphic. Zygomorphic means that is
when there is a flower like this and it can show the mirror image only through one plane. सिर्फ एक ही प्लेन में वो मिरर इमेज दे सकता है like this. We symbolize it with this बड़ा सा एक लाइन और उसके साथ छोटा लाइन प्लस साइन, जिसे जीसस क्राइस्ट का होता है वैसा जाइगोमॉर्फिक. कई बुक्स में आप देखेंगे, कई बुक्स में जाइगोमॉर्फिक के लिए परसेंट साइन भी ऐसे बनाया होता है, परसेंट साइन, वो भी सही है परसेंट, ठीक है, वो भी ठीक है, कई बुक्स में इस तरह बना होता है. ओके, so this is actinomorphic and zygomorphic as that for the symmetries. Clear? Coming to the next is there is a term called as bract. What is that bract and the bracteoles? Two terms are there, bract and a bracteole. What are these things? Now supposing if there is a plant, there is a flower, let's say ये एक हमारे पास मेन स्टेम है, मेन स्टेम के साथ ये शूट लगा है और यहाँ पे फ्लावर जो है वो बॉर्न है लाइक दिस. ओके, दिस फ्लावर इफ अपार्ट फ्रॉम द सेपल्स, अपार्ट फ्रॉम सेपल्स मतलब ये तो है ही है, उसके पार्ट है, मेन पार्ट है उसके साथ लगा है, उसके अलावा अगर आपको एक कोई लीफ एक्स्ट्रा, लीफी स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा बेस ऑफ द फ्लावर पे मिलता है, then that part is called as a bract. Okay, and the condition if it is present we call it as bracteate. हम उसको क्या कहेंगे? bracteate. और अगर वो प्रेजेंट है तो bracteate, अगर वो एब्सेंट है तो ebracteate, अगर ये एब्सेंट है. ठीक है, फ्लावर्स के बेस पे अगर आपको एक एक्स्ट्रा लीफ स्ट्रक्चर मिलता है अपार्ट फ्रॉम द सेपल्स, that is a bract. If present, it is bracteate. If absent, it is ebracteate. Clear? And on the stalk of this flower, ठीक है, अगर इस स्टॉक ऑफ द फ्लावर पे आपको कहीं पे भी छोटा सा ऐसा लीफी स्ट्रक्चर मिलता है, छोटा सा, बहुत छोटा होता है, स्केली लीफी. अब ये नेल देख रहे हो मेरा, इतने से साइज का होगा, ठीक है, नेल साइज का, बहुत ही हल्का, छोटा सा, वेरी स्मॉल. ठीक है, सो इतना स्मॉल स्ट्रक्चर लीफी, इट्स नॉट अ प्रोमिनेंट लीफ, लीव्स इसके बड़े बड़े होंगे, प्रॉपर ऐसे बड़े बड़े लीव्स निकलेंगे इसमें फ्लावर में, प्लांट में, जो कि आपको प्रॉपरली डिफरेंशिएट करवाएंगे. ठीक है, दिस इज अ लीफ एंड ऑल्सो दे हैव वेन्स एंड द वेनलेट स्ट्रक्चर्स, but this is a small leafy projection found at the stalk anywhere between the flower and its point of attachment to the main stem. Then that structure is called as a bracteole. If it is present, then it is bracteolate, bracteolate, and if it is absent, then it is ebracteolate. Okay. Now similarly, we also have the sides of a flower. Sides of a flower significant role play करती हैं. Why this side of a flower is we are studying the side of a flower? क्योंकि ये जो आपका मेन स्टेम है वो एक मदर एक्सिस की तरह बिहेव करेगा. मदर एक्सिस मतलब जिसने आपको ये सिमेट्री प्रोवाइड करनी. ठीक है, एक मेन लाइन जो आपको बताएगा कि आपको इस प्लेन पे काटना है कि इस प्लेन पे काटना है, तो आपको मिरर इमेज मिलेगा. ठीक है, ये चीज तो मदर एक्सिस देता है, वो हमें प्रोवाइड करता है दैट टुवर्ड्स व्हाट साइड यू विल गेट द this mirror image. Okay, now for this, the flowers part that which faces the mother axis, this side is termed as a posterior side. This is the posterior side of a flower, the one facing the mother axis, and opposite to it is the anterior side. Okay, mother axis के तरफ जो आ रहा है वो posterior side है, मदर एक्सिस से दूर जो जा रहा है वो एंटीरियर साइड है. ये साइड्स पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे पास 5 पेटल्स हैं सपोजिंग. ठीक है, अब 5 पेटल्स में इफ वी हैव 5 ऑफ द पेटल्स, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये 5 पेटल्स है मेरे पास फ्लावर में, तो फ्लावर में अब कौन सा वाला फ्लावर का हमें पेटल हाफ करना है ना. अब अगर तो मेन स्टेम इधर लगी हुई है इस फ्लावर की, तो अब ये देखो ऑड वन किधर को है, दैट इज टुवर्ड्स द एंटीरियर साइड. ऑड वन है ना, ये इसका पेयर, ये इसका पेयर, ये ऑड है, तो हमें पता चलेगा कि ऑड वाले को किधर रखना है, एंटीरियर साइड पे रखना है, मदर एक्सिस से एंटीरियर साइड पे रखना है. ऑड वाला अगर इधर होगा तो पोस्टीरियर साइड पे रखना है, और हमेशा ऑड वाले में से ही सिमेट्री लाइन जो है निकाली जाती है, ऑड वाले से हमने हाफ करना होता है. ठीक है,
और ड्राइंग के टाइम पे मदर एक्सिस से दूर बनाएंगे। जब हमने ये वाला फ्लावर बनाया, ये ऐसे फ्लोरल डायग्राम्स भी बनाओगे आप, ठीक है। तो जब फ्लावर बनाया तो मदर एक्सिस इस तरफ नहीं आएगा। अब हमारा मदर एक्सिस एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आप फ्लोरल डायग्राम पे बनाते हो, तो ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर हमारा बनेगा मदर एक्सिस ऑपोजिट टू इंटीरियर साइड, मतलब टुवर्ड्स द पोस्टीरियर साइड, ठीक है। तो ये कुछ एक चीजें हैं आपकी, दैट इज द टर्म्स, जनरल टर्म्स विच आर देयर फॉर द फ्लावर, डिस्क्राइबिंग द फ्लावर, okay. Anybody having any question? So we have just completed this general terms of the flower, not the details of the parts of this, okay. Detailings हमने नहीं करी है, we'll continue further after your vacations, right? Yes Sahaj, 1 second बच्चे, just a second. हाँ जी बोलो। मतलब अगर टेपल्स हैं तो इनकम्प्लीट, मैंने बताया तो है, तब हमारे वर्ल्स कंप्लीट नहीं ना हुए। उसी के कंसर्न में तो मैंने आपको बताया था कि इनकम्प्लीट यहाँ तो रिप्रोडक्टिव की वजह से होता है दोनों, तो हम इसको यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। तो यहाँ ये पेटल सेपल की वजह से भी हो सकता है, जहाँ हम टेपल टर्म बोलेंगे, ठीक है। ओके। हाँ जी, एनीबडी एल्स, एनीवन एल्स हैविंग एनी डाउट? So now let us discuss about your holidays homework that you are to provide. You will be providing me